students of class 9th, welcome to our next chapter, that is atomic structure. Students, what is atom? Actually you don't know about this. This is your new topic. Okay, so let's study about this. Atoms are divided into the three particles, ठीक है, और consist of the three particles, that is what, that is positively charged protons, negatively charged electrons and chargeless neutrons. Atoms are the smallest part of any element. Atoms are the smallest part of any element. About the electron, protons and neutrons you will study in this chapter after some time. Okay, you have to know only about that, what electrons denoted by E and negatively signed, ठीक है. Protons are denoted by P positive and neutron is denoted by L. You can see here location outside the nucleus, proton inside the nucleus and neutron is also situated inside the nucleus. Relatively charged, I already told you that electrons and protons are charged particles where neutron is chargeless. You can see the table of relative mass, that is electron is very light weighted, that is why he is circulating around the nucleus, and proton and neutron are heavy particles that is situated in the nucleus. And absolute mass, in absolute mass you can also see about the charge, okay, power. Electron is very light molecule, light weighted molecule, where proton and neutron are as same as in weight. Student, when we study about the structure of an atom, we can't we cannot study this structure without the help of John Dalton. Who is John Dalton? John Dalton was a school teacher and scientist in Britain. Okay, and Dalton's atomic theory is most important in your syllabus as well as in the syllabus of class 11th also. ठीक है, what are the parts of that? All matter are made of atoms, you know about that. That atom is the smallest part. Atoms are indivisible, that means smallest, infinitely small particles which cannot be created neither be destroyed in any chemical reaction. Students, आप एटम्स को ना बना सकते हैं ना खत्म कर सकते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन के थ्रू ये नहीं बनेंगे. नेक्स्ट वन इज एटम ऑफ गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. जस्ट लाइक आई विल टेक ऑक्सीजन, all atoms of oxygen are same, where oxygen is achieved from this place or from the school or from the Himalaya or anywhere. Okay, atoms of different elements are different masses and chemical properties. Just like comparing with the oxygen atoms with carbon atoms, both are different in mass as well as in chemical properties. Then atoms of different elements combine in the ratio of small whole numbers. ठीक है, whole numbers पे, just like formula H2O. ठीक है, हाइड्रोजन के कितने एटम है इसमें? 2. ऑक्सीजन का कितना एटम है? 1. कभी भी आपने 1.5 पढ़ा है क्या? H 1.5 O3 इस तरीके से नहीं पढ़ा होगा ना. Then the relative number and kind of atom are constant in given compound. That means H2O, पानी यहाँ से लिया गया, पानी आप हिमालय से भी ले लें, कहीं से भी ले लें, बट उनका फॉर्मूला हमेशा इतना ही होगा. ऐसा नहीं है कि वहाँ पर ऑक्सीजन कम है तो ऑक्सीजन वहाँ के पानी में कम हो जाएगी, वो H2O ही रहेगा. अंडरस्टैंड? तो इस बेसिस पे जॉन डॉल्टन ने एक लॉ दिया था, दैट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन. व्हाट इज द लॉ? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन. दैट इज नॉट एज इम्पॉर्टेंट, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे.
you will have to see about the diagram. Okay, you already observe about the watermelon. देखा है रेड वाला पार्ट और उसके बीज वाला भाग, ठीक है। तो जो उसका रेड वाला पार्ट है वो उसका पॉजिटिव स्फीयर हो गया और जो उसके बीज हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। बीज मूव करते हैं क्या? नहीं मूव करते। वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स इसमें बताया गया था कि ये मूव नहीं करते। थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम इज पॉपुलरिटी नोन एज द प्लम पुडिंग मॉडल और क्रिसमस पुडिंग मॉडल। अंडरस्टैंड? अकॉर्डिंग टू द थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल एन एटम इज पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, ठीक है, जहाँ इलेक्ट्रॉन क्या है? एम्बेडेड हैं, गूथे हुए हैं। देन नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव चार्ज ऑफ स्फीयर इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ठीक है। इसलिए जो एटम होता है, मतलब जितने पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही पॉजिटिव चार्ज अबाउट द प्रोटॉन्स होंगे। तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव सेम हो जाता है तो आपका एटम क्या हो गया? न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। बट दिस मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट द साइंटिस्ट। लेकिन ये क्या हुआ? इसने तो कुछ भी रिजल्ट नहीं दिया ना। क्यों नहीं दिया? उसकी लिमिटेशंस क्या थी? क्योंकि स्टूडेंट्स जब कोई मॉडल फेल होता है तो वो मॉडल फेल तभी होगा जब उसकी कुछ लिमिटेशंस या उसमें कुछ ड्रॉबैक्स निकलेंगे। अब ये ड्रॉबैक्स क्या हैं वो पढ़ते हैं हम, ठीक है। ऑल्दो थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन वाई एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। थॉमसन मॉडल ने कुल मिला के हमें ये तो एक्सप्लेन कर दिया कि जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, बट ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ कहाँ पर होंगे एटम में? क्या मैं ये इस इलेक्ट्रॉन को निकाल के यहाँ पर लगा सकती हूँ? सपोज ये वाला है, इसको हटा के यहाँ पर लगा सकती हूँ क्या? नहीं लगा सकती। ये कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होगा इसके बारे में तो ये बता ही नहीं रहा है, ठीक है। देन यदि हम ये मान लें कि इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज में गुथे हुए हैं, ठीक है, तो यदि हम ये मान लें कि जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव चार्ज में गुथे हुए हैं तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल तो हो जाएगा, बट इसके इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने से क्या होगा? क्या ये आयन फॉर्मेशन समझा पाएगा? आप लिखते हैं ना H+, OH-, कैसे पर बनेगा ये? ठीक भाई, वो तो गुथा हुआ है ना, एक दूसरे में कैच किया गया है। देन थॉमसन्स मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन वाई डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब इसमें के हिसाब से तो सारी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो गई ना, ये तो कुछ आगे एक्सप्लेन ही नहीं कर रहा है। अब इसके बाद आया रदरफोर्ड्स स्कैटरिंग मॉडल, ठीक है। रदरफोर्ड का जो मॉडल था वो वाइडली एक्सेप्टेड था, उसमें केवल 2 या 3 ड्रॉबैक्स है, ठीक है, बाकी ये सबसे ज़्यादा वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल है। एक्चुअली इसे हम रदरफोर्ड का जो मॉडल है इसे हम अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जानते हैं। ये जो मॉडल है या ये जो टॉपिक है ये आपके अभी के साथ साथ क्लास 11th में भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। लेट्स स्टडी अबाउट दैट। 3 टॉपिक्स हैं इसमें, 3 या 4 टॉपिक्स हैं। फर्स्ट इज एक्सपेरिमेंट, देन सेकेंड इज ऑब्जर्वेशन, थर्ड इज रिजल्ट। स्टूडेंट्स आपकी बुक में अच्छे से नहीं दिया हुआ है लेकिन आप पॉइंट्स बना के लिखेंगे। क्या पॉइंट्स बनेंगे? 3 पॉइंट्स बनेंगे, दैट इज एक्सपेरिमेंट, सेकेंड इज ऑब्जर्वेशन एंड थर्ड इज कंक्लूजन। लास्ट में आपका पॉइंट एक आ जाएगा, वो क्या हो जाएगा? वो है आपका लिमिटेशन और ये डायग्राम। तो इस टॉपिक में आपके 5 सब टॉपिक्स बनेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पिछले जब से मैं पढ़ा रही हूँ इस स्कूल में तब से आया ही है, ये भी ये 9th के भी एग्ज़ाम पे आया है और क्लास 11th के भी एग्ज़ाम पे आता ही है, ठीक है। नाउ रदरफोर्ड ने क्या एक्सपेरिमेंट किया? रदरफोर्ड ने एक बहुत पतली सी गोल्ड फॉइल ली और उसमें अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बार्टमेंट की। What are the alpha particles? Alpha particles are positively charged particles. Alpha particles are positively charged particles. ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट में आ गया। थीन गोल्ड बम्बार्टमेंट ऑफ अल्फा पार्टी रदरफोर्ड, सुनते जाएंगे ध्यान से, ठीक है।
रदरफोर्ड बम्बार्डेड द अल्फा पार्टिकल्स ऑन अ थिन गोल्ड फॉइल। सिर्फ एक्सपेरिमेंट में एक लाइन, रदरफोर्ड बम्बार्डेड द अल्फा पार्टिकल्स इन थिन गोल्ड फॉइल। व्हाट इज ऑब्जर्वेशन? उसने 3 चीज़ें देखी। उसने कितनी चीज़ें देखी? उसने 3 चीज़ें देखी। क्या क्या देखी? जो कुछ मटेरियल्स थे, जो कुछ अल्फा पार्टिकल्स थे, वो क्या कर रहे हैं? क्रॉस कर जा, बहुत सारे, मोस्ट ऑफ दैट मीन्स मोर देन 80% अल्फा पार्टिकल्स क्रॉस कर जा रहे थे। ठीक है। आफ्टर दैट 18-19% आउट ऑफ 100% बता रहे हैं। ठीक है, आउट ऑफ 100% में अल्फा पार्टिकल्स मोर देन 80% क्रॉस कर रहे थे। अंडरस्टैंड? देन ये क्रॉस हो रहा है पूरा सीधी सीधी लाइन में ना, यहाँ पर हो जाएंगे, ये क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है। देन ये वाले जो थे, जो स्कैटर हो रहे थे, देखो सीधे आके यहाँ मुड़ जा रहे हैं। ठीक है। जो स्कैटर हो रहे थे वो भी स्मॉल अमाउंट में थे, 18 से 19%, और केवल 1% जो पार्टिकल है वो बाउंस बैक हो रहे थे। 3 ऑब्जर्वेशन थे। ठीक है। मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स अक्रॉस द गोल्ड फॉइल, सम ऑफ द पार्टिकल्स गेट डिफ्लेक्टेड एंड रेयरली पार्टिकल्स आर बाउंस बैक। तो उनने कंक्लूजन क्या निकाला? मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज हॉलो। हॉलो है तभी, खोखला है तभी तो आर पार जा रहे हैं। अंडरस्टैंड? नाउ अब ये बताइए कि यदि मान लीजिए जैसे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन अल्फा पार्टिकल को कैरी करके तो रखेगा, बट चूंकि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो वो अल्फा पार्टिकल को उसको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि निगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियस। सेकेंड, ठीक है। थर्ड वन इज पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस इज ऑन द सेंटर ऑफ एन एटम, दैट्स वाई इट रिपल द अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स यहाँ पे रिपल क्यों हुए भाई? यहाँ पर पॉजिटिव, यदि मान लो यहाँ पर निगेटिव पार्ट होता तो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता। पॉजिटिव पार्ट है तो पॉजिटिव में क्या हो गया? रिपल्शन हो गया। ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज, हम अपने मन से बना सकते हैं ये पॉइंट, इन द कंपैरिजन ऑफ साइज ऑफ एटम। एटम के साइज के कंपेयर में साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल, तभी तो बहुत थोड़े से आए ना। ठीक है। साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एंड न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज, न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है। और द मास ऑफ और होल एटम इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। देन सम ड्रॉबैक्स थे। रदरफोर्ड मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन हाउ द मूविंग इलेक्ट्रॉन कुड नॉट रिमेन इट्स ऑर्बिट। रदरफोर्ड ये तो बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, बट ये नहीं बता रहा है कि मूविंग इलेक्ट्रॉन्स अपने ही ऑर्बिट में क्यों हैं। ठीक है। देन क्या होता है, जब आप सपोज एक एग्जांपल लीजिएगा, आपने रस्सी में एक पत्थर बांधा और आप उसको गोल 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 घुमा रहे हैं, एक समय में वो इतना एक्सीलरेट हो जाता है कि रस्सी आपके हाथ से छूट जाती है और वो पत्थर जो है वो बाहर चले जाता है। सेम वैसे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो इसमें भी हो सकता है ना। दैट मीन्स रदरफोर्ड मॉडल डज नॉट कैन एक्सप्लेन अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। आया समझ में? तो बेटा आज हम इतने ही टॉपिक्स पढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो पे हम और आगे के टॉपिक्स देखेंगे। व्हाट आर दैट? दैट आर द बोर्स एटॉमिक मॉडल, ऑर्बिट्स, ऑक्टेट रूल एंड many more topics. Okay, students, let's move on the questions. What is atom? Write about the properties of atom. Comparative study of the particles of atom, जो मैंने आपको टेबल दिखाया था. Then who is John Dalton? Explain its atomic theory. Explain about the Thomson's atomic model and its drawbacks. Explain Rutherford's atomic model on following points. ये points note कर लेंगे: experiment, observation, conclusion, limitation and diagram. Okay, thank you for listening and
We will meet in our next video soon. Thank you.